Okay, ji, we are going to start from page number 5, chapter number 1. तो कुछ हमारे पास रीडिंग एक्टिविटी है पहले, और रीडिंग के बाद आपकी राइटिंग और प्रेजेंटेशन वाली एक्टिविटी मैंने आपको पहले ही ग्रुप में भेज दी थी। तो पहले हम रीडिंग कर लेंगे और फिर हम इसकी प्रेजेंटेशन ले लेंगे आपसे। सो आर यू रेडी टू डू रीडिंग एक्टिविटी? Okay. My sisters, my brother, and I are busy this afternoon. We are staying after school, and we are practicing different things. I'm practicing soccer. I practice soccer every day after school. My soccer coach tells me I'm an excellent soccer player. And my friends tell me I play soccer better than anyone else in the school. I want to be a professional soccer player when I grow up. That's why I practice every day. Very good. Yes, Miss Aisha. My sisters Jenny and Vanessa are practicing ballet. They practice ballet every day after school. Their ballet instructor tells them they are excellent dancers, and their friends tell them they dance better than anyone else in the school. Jenny and Vanessa want to be professional ballet dancers when they grow up. That's why they practice every day. Very nice. Do you have any issue to understand any phrase or the word or the sentence in this paragraph? सर ये बैले का मतलब ही नहीं पता मुझे, ये क्या है, ये कौन सा? This is kind of dance. Okay, ji, I sent you already into your group that you have to present this activity. This is regarding the reading activity. So, are you done, Miss Aisha Riba? Okay, sir. I take my online English class and it's live on 8 p.m. My teacher names Professor B. We all students practice in groups by different activities, with different type of activities. And in my home, I practice it with my brother and niece. We follow the same model as we learned in our class. And I really like my English class because it helps me to speak English confidently. Great, good try. Very nice. So how often mean कितनी बार? We have learnt already. कोई काम कितनी बार किया जाता है? आप कितनी बार मार्केट जाते हो? How often do you go to the market? These are the different cases of pronoun, as you know. I is the subjective case, my is the possessive adjective case, and me is the, who can tell? These are all subjective cases. And these are the possessive adjective cases. What are these? Objective cases. Very nice. Subjective case, objective case, and in the center, this is possessive adjective case. Okay, ji, you have already learned about the time expressions like every day, every week, and every month, every year, every morning, afternoon, evening, night, every Sunday, Monday, Tuesday, every Sunday morning, afternoon, every night, every January, February, March, once a week, once a day, once a month, once a year, twice a day, twice a week, twice a month, twice a year, 3 times a day, 3 times a week, 3 times a month, 3 times a year, and all the time. These are called what? Time expressions. Time expressions. Okay, ji. Now try to understand the situation. Who are you calling? Who are you calling? किसको कॉल कर रही हो? Who are you calling? Who? किसको are you calling कर रही हो कॉल? I am calling, मैं कॉल कर रही हूँ my sister, अपनी बहन को, in San Francisco. In San Francisco मतलब मेरी बहन San Francisco में रहती है. This is city name. I'm, as you know, this is the contracted form, and my, this is the possessive adjective. I'm calling my sister in San Francisco. How often do you call her?
हाउ ऑफन डू यू कॉल हर, कितनी बार करती हो उसको कॉल? आई कॉल हर एवरी संडे इवनिंग, आई कॉल हर एवरी संडे इवनिंग. Look, her is a objective case of the pronoun, objective case of she, right? तो दो मरतबा इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यूज हो गया. दिस इज सिंपल सिचुएशन. व्हाट आर जॉर्ज एंड हारमन टॉकिंग अबाउट? जॉर्ज और हारमन जो है वो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? देर टॉकिंग अबाउट देयर ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रैंड किड्स भी कह सकते हैं आप. they talking about their grandkids, वो अपने ग्रैंड किड्स मतलब वो अपने बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं. हाउ ऑफन डू दे टॉक अबाउट देम, कितनी मर्तबा कब कब उनके बारे में बैठ के बातें करते हैं? दे टॉक अबाउट देम ऑल द टाइम, वो हमेशा उनके बारे में बातें करते हैं, हर वक्त जब भी मौका मिलता है. दीज आर द पिक्चर्स. आपने पिक्चर में को और से देखना है, कॉल पे बात हो रही है या कोई और काम हो रहा है, उसके मुताबिक फिर उसको प्रेजेंट करना है. लाइक हु इज मिस्टर टनाका कॉलिंग, मिस्टर टनाका किसको कॉल कर रहे हैं? राइट वो अपने बेटे को कर रहे हैं जो कि न्यूयॉर्क में है. ही इज कॉलिंग हिज सन इन न्यूयॉर्क. कब कब करते हैं? हाउ ऑफन डज ही कॉल हिम, डज ही कॉल हिम, हाउ ऑफन डज ही कॉल हिम, वो उसको कितनी मर्तबा कॉल करते हैं? अब देखें ये जो कॉल होती है ना जब बच्चे दूर होते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वीकेंड पे कॉल हो पाती है. जैसे ये वीकेंड पे कॉल कर रहा था एवरी संडे इवनिंग. तो कॉमन सेंस यूज करनी है कि ये कब हो सकता है. तो कॉमन सेंस यही कहती है कि सैटरडे को वो फ्री होते हैं तो उसी वक्त कॉल करते हैं. तो ही कॉल्स हिम एवरी सैटरडे, एवरी संडे मॉर्निंग, किसी भी वक्त. राइट इस तरीके से मैं ये सारी पिक्चर्स एक मतलब आपको सिचुएशन समझा देता हूँ फिर हम वो इसको प्रेजेंट करते हैं. हु इज मिसेस क्रैमर राइटिंग टू, मिसेस क्रैमर किसको राइट कर रही हैं, लेटर लिख रही हैं? शी इज राइटिंग टू हर डॉटर इन द आर्मी, वो अपनी बेटी को लिख रही हैं जो कि आर्मी में जॉब करती है. हाउ ऑफन डज शी राइट हर, कितनी मर्तबा उनको लिखती है? अब आपने कॉमन सेंस यूज करनी है कि लेटर जो है आमतौर पे कितनी मर्तबा लिखे जाते हैं. ये महीनों बाद लिखे जाते हैं, सालों बाद लिखे जाते हैं, तो आप महीने कह लें. शी राइट्स हर एवरी वीक, एवरी मंथ. ठीक है. What are the students talking about? Students किस चीज के बारे में बातें कर रहे हैं? They are talking about their teachers. वो अपने टीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं. How often they talk about their about them? They talk about them all the time. Students तो हमेशा ही क्योंकि डेली वास्ता पड़ता है तो डेली उनके बारे में बातें करते हैं. Who is Lanny arguing with? Argue का मतलब बातचीत का बढ़ जाना, आर्ग्यू करना. ठीक है जी. तो शी इज आर्ग्यूइंग विद लैंडलॉर्ड. क्यों कर, अच्छा, हाउ ऑफन डज शी आर्ग्यू विद हिम, कितनी मर्तबा कब कब करती है? तो लैंडलॉर्ड कौन होता है? लैंडलॉर्ड वो होता है जो अपार्टमेंट किराए पे रेंट पे देता है और एट द एंड ऑफ एवरी मंथ ही कम्स टू टेक द रेंट. महीने के आखिर में वो किराया लेने आता है. तो दादर जिसके पास किराया नहीं होगा तो वो बहस करेगा. तो ये एवरी मंथ करता है. शी आर्ग्यूज विद हिम एवरी मंथ, एवरी मंथ. ठीक है जी. अब मैं सिर्फ पढ़ता जाता हूं, समझा देता हूं, फिर हम इसको प्रेजेंट कर लेते हैं. हु इज मार्था सेंडिंग एन ईमेल टू? मार्था किसको सेंड कर रही है? ग्रैंड मदर को कर रही है जो कि ऑरलैंडो में रहती है, ग्रैंड डॉटर को, सॉरी. हु इज मिस्टर क्रैपल, बी साइलेंट है, क्रैपल शाउटिंग एट, मिस्टर शाउटिंग एट, मिस्टर जो क्रैपल है किसको शाउट कर रहे हैं? एम्प्लॉयज को कर रहे हैं. कब कब करते हैं? अब आपने कॉमन सेंस यूज करना कि कब कब शाउट होता है, कोई खास असाइनमेंट के बाद या क्या? व्हाट आर योर पेरेंट्स कंप्लेनिंग अबाउट? आपके पेरेंट्स किस चीज के बारे में कंप्लेन कर रहे हैं? टेलीफोन बिल्स के बारे में कर रहे हैं जी. तो साधारण बिल महीने के आखिर में आता है तो एवरी मंथ होगा.
What is George watching? क्या देख रहा है? फेवरेट टीवी शो, टॉक शो देख रहा है, कब कब देखता है? तो टीवी शो कब देखने का मौका मिलता है? जो बंदा पढ़ रहा हो या जॉब कर रहा हो, साफ है वीकेंड पे होता है। हु इज लिटिल रेड राइडिंग हुड विजिटिंग? रेड राइडिंग हुड किसको विजिट कर रही है? ग्रैंड मदर को कर रही है। कब कब करती है? अगर दूर रहती हो साफ है, या महीनों बाद करती होगी या हफ्तों बाद करती होगी, तो ये कॉमन सेंस यूज करना है, आई थिंक। मेरे ख्याल में मैंने अच्छे खासे अंदाज में आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। नाउ इट्स इजी फॉर यू टू प्रेजेंट with the pictures. Miss Asha, you can ask. Okay. Who is Mrs. Kramer writing to? She's writing to her daughter in the army. How often does she write her? She writes her every month. What are the students talking about? They are talking about their teacher. How often do they call and talk about them? They talk about them every day. Very good. Every day, all the time. This is correct. Okay. Who is Lanny arguing with? She is arguing with her landlord. How often does she argue with him? He argues with him every month.